Yes, very good afternoon to everyone. Are you finding any difficulties in following the scenarios? Active support, fresh support, minimum retracement, maximum retracement, stop and use to buy sell. Like this, active support re-entry we begin. कोई भी क्वेरी है तो पूछो, टाइम वेस्ट नहीं हो अपना. संतोष बोलिए. गुड इवनिंग हाँ संतोष कहिए. सर एक ये अपोलो हॉस्पिटल में वीकली का 12 सितंबर का देखेंगे. वीकली 12 सितंबर 20. September 2020. Okay. सर उसका जो 11 सितंबर को at 10:30 सर ये जो फ्रेश सपोर्ट मिला है, so that support should it not be at lower band? That should not be at lower band. The support is at FC 61.8% TVLS. Okay. Should it not be at lower band, the support? No. Immediate, what is the lowest low? Lowest low is 1600. 1585.05. 1585, right. But this low should be incorrect. देखते हैं. Okay. In that 50 minutes. Apollo Hospital, 10th September 2020. The stop and use to buy support is always okay. I got it. Okay. 85 is occurred in 15 minutes. So we ignore. So lowest low happens to be yes 1593, we can say 1592.20. Okay, sir. I got it. Above FC 61.8. Okay, so sir. 61.8 is the support. Okay. Yeah, okay, I got it. So there is another one on Lupin daily. Lupin daily. 25th. Yes, sir. Daily. 25th January 21. So you see, there are two 8-year journey. 8-year journey. One for selling. Yeah. One and for then buying. Another down below, I think, one more. Yeah, because whenever first time it trades with active support, active resistance or fresh support or fresh resistance, 8-year journey will keep occurring. Here ICRC active resistance, so 8-year journey is counted from there. Then it has come trading with support. So according to the support, 8-year journey will be there. Then according to I think there is. Yeah, I think the lower one. So what will be the journey target? Lower one, yes. How do we calculate the last 8-year journey? On 25th January, right, stop used to sell in RC has occurred. From where prices have reversed until 25th January, it was trading at 11:30. It was trading with support, right? Right, sir.
and the highest high was 1095.85, right? Right, sir, right. So when stop and used to sell occurs and it is trading with resistance, Okay, highest high this minus 1095.85 minus 88. minus the 80. Okay, okay. Okay, okay. I got it, sir. I think I got confused with the. Yeah, okay. No problem. Yeah, sir, this there is minimum retracement and maximum retracement. So, do we treat minimum and maximum retracement differently? What is the difference? No, not different. I'm saying suppose there is a minimum retracement. Is our response different? In case of maximum retracement, our response is different, and in case of minimum retracement. No, there is understanding wise there is no difference at all. Mm-hmm. Judgment wise also there is no difference. Not But okay. scripts which are reversing from maximum retracement Mm-hmm. will have some better reward, higher reward than minimum retracement. Yeah, Journey okay. will be We little are longer. more confident. We are more confident that is going back. Hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Yes, sir. So go to someone else. Yes, sir. प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्वेरी आएगी. तो बिना क्वेरी अगर आप सीख रहे हो तो आई डोंट बिलीव कि भाई बिना क्वेरी तो हो ही नहीं सकता है ना. कोई क्वेरी है तो पूछ लो. स्टेप बाय स्टेप करोगे. पहले सिर्फ आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट पे मास्टरी करो, फिर रीबिगिन टू बाय पे करो, फिर री एंट्री इनटू आरसी पे करो, फिर सेलिंग साइड में सिर्फ एक्टिव रेजिस्टेंस, सिर्फ रीबिगिन टू सेल, सिर्फ री एंट्री इनटू एफसी. 25 केस स्टडीज बाय साइड सेल साइड मिला के 50 केस स्टडी कर लेनी चाहिए. देन फ्रेश सपोर्ट अपर बैंड, फिर ट्रेलिंग सपोर्ट जितने भी नए नए मिलते हैं, देन फ्रेश रेजिस्टेंस लोअर बैंड, देन स्टॉप एंड यूज टू बाई, स्टॉप एंड यूज टू सेल. इस तरह से बोथ साइड्स 25 केस स्टडी करनी चाहिए और फिर रिट्रेसमेंट करना चाहिए. फिर एटीआर जर्नी बिगिन मिडवे कंप्लीट एंड ये करना चाहिए. और साथ साथ में देखना चाहिए हाउ मार्केट बिहेव एट 100%, 261.8%. तो मैंने पूरा अच्छे से नहीं समझाया है, बट मैं चाहता हूँ कि जब स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर अपर बैंड क्लाइंबिंग बाय हो, आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट होकर अपर बैंड क्लाइंबिंग बाय हो, री एंट्री इनटू आरसी रीबिगिन टू बाय होकर अपर बैंड क्लाइंबिंग बाय हो, आईसीआरसी ओपन होकर अपर बैंड क्लाइंबिंग बाय हो, आरएसएल हायर ओपन होकर ओपनिंग क्लाइंबिंग बाय है इज इक्वल टू अपर बैंड ओनली. फिर भैया फॉलिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर एफसी 14.6 आता हो, भैया बढ़ते बढ़ते आरसी 100% तक आता हो, भैया बढ़ते बढ़ते आरसी 261.8 तक आता है. जैसे प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स भी है, एग्जिट लेवल्स भी है, क्योंकि वहां से भैया रिट्रेस होता है 10 में से 8 बार होता है. तो वो आपको वो भी प्रैक्टिस करनी है. बस दैट्स ऑल. संतोष कहिए. हाँ सर, मैं और एक दो क्वेरी था, मैं सोचा किसी और का है करके, तो आई थिंक आई कैन आस्क. आराम ओके. से आराम से. Okay. Sir, again, Apollo weekly 9th January का अपोलो टायर और अपोलो हॉस्पिटल. Apollo Hospital, sir. Apollo Hospital. सही है. 9th January. सर इसमें जैसे कि ATR जर्नी है on 4th at 13:30. 4th. सर उससे
पहले भी जो एक्टिव सपोर्ट में है, लेट्स से, तो वहां से ना एटीआर जर्नी आई थिंक 5th को है, बट देन ये जो 4th को 1330 को वहां पे भी एटीआर जर्नी होना चाहिए ना? 4th को 13:30 को 1:30 बजे ICFC एक्टिव सपोर्ट से चल रहा है, तो सर इट इज नॉट मेंशन्ड, करेक्ट है। ओके ओके, सो देन बराबर है। देखते हैं 5th जनवरी को लोएस्ट लो इज 2385 और 2385 प्लस 162 कितना होगा? देखो 23 of 24 25 40 50 होगा, मतलब बराबर है। 2548 है। ओके, बट ऊपर में वही सोच रहा कि एक्टिव सपोर्ट में भी होना चाहिए, दैट्स व्हाट। 4 जनवरी को 130 को एक्टिव सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, बट इट इज नॉट देयर। Okay. I just confirm my understanding, sir. और एक L&T का weekly 1 मिनट ये नोट कर लेता हूँ। ओके सर। हाँ संतोष कहिए। सर ये L&T का वीकली 25 जनवरी L&T Larsen and Toubro 25th January, yes. 25th January. So basically last 30th week, हाँ. Right. So उसका अच्छा, maybe I think I saw the daily log. I was looking at the daily log, sir. Not weekly, daily. I saw it from the I looked it from the post opening page. I think from there I was looking at the daily log. 25th January. बोलिए सर इसमें yes, the low RC 23 points, low is less than okay. I think I saw it yesterday. It was no sir, ऊपर ही 25th का. No, I think I saw, I think initially it was running with resistance, and then suddenly there was a 8-year journey in green. I probably it is rectified. Sir, ये मैं सर कल no sir. So it was running with resistance, and then I saw one line 8-year journey in green. So basically the price had gone up,
and then it was showing low. So looks like it is changed here. Because So some on the 25th January, 10:30, right, sir. Huh. was traded with resistance, Right, sir. and at 10:30, once again it started trading with support also. So both occurrences, usually support resistance will not occur in same period. Only one Okay, sir. condition is there, that when stop and used to buy occurred in same hour, Mm-hmm. the close of the hour also should be greater than resistance TVHS. Only then Okay. support can occur in same hour. That's why Mm-hmm. you must have noticed that in same hour, ATR very begin and between on sell side also and buy card Mm-hmm. also. So can you just go Both down a occur bit? in same hour. Yeah, looks like, yeah, I think there is some confusion. I saw it yesterday only. Yes. Hmm. Okay, sir, how do we check, let's say, the live update in the post opening page? Let's say I look at a script where the maximum resistance is there. I'm waiting to see Post whether opening trade support is setup occurring. pages. In this one, Okay, you are right, talking sir. about post opening trade setup Yes, pages, sir. Yes, sir. but don't do daily now. Uh-huh. First, let us practice No, I on just, weekly, okay. and I'll tell you why not daily. Because no, Mm-hmm. for weekly time frame, for taking buying selling judgment, we are Sure. taking clue, we are filtering higher time frame and taking clue from low time frame. Okay, sir. And when low time frame trades with support or low time frame trades with resistance, we are initiating the trade. Okay, sir. But in daily time frame, we don't have low time frame to track. To That try. is the Yeah, first. yeah, got it, sir. But sir, I was trying to see how do I see the You can see update? Let's say, we can see like this. hmm, First off, daily, if you search during market hours, there are few trades in daily without taking the clue from low time frame. If anybody is hmm, interested, we'll talk about daily time frame sometime later. But I want to push okay. encourage only for weekly. There are 11 records. Hmm, And from here count, if you go buying in trending, 2. Then if you go to live opportunity okay. buying, all are trading with resistance. So it will come nil, Hmm, no record. hmm. Then if you go to selling, No, selling hmm. in trending 9. Then live opportunity selling 2 scripts. So these 2 scripts were best sell yesterday. Hmm. So this accordion will give the latest update if there is any update in the Yes, script. yes, yes. Once We'll you get do to this see in live the accordion. opportunity buying selling, once you do this Hmm. live opportunity buying selling, Sure. currently which scripts are best for buying, best for selling, it will filter. No, let's say I choose Adani Enterprise and I want to see the update going on in Adani. Let's say maximum retracement has happened, whether it's weekly or daily, and then I want to see whether support has occurred or not. So that update will keep coming here Yes, automatically it will every update. at a real time. Yes, yes. Okay. That's what I was asking. Okay. Yeah. And so in record summary sheet, you see there are alphabets like N, S, I. So N, I could figure out maybe it is when the low is less than the WDP. So like What N, SI? that alphabet N, right, sir? Good. No. This I have not shared with you, and Okay, I have okay, been we'll wait telling then. also for last 3 years. बहुत Oh, ज़्यादा हो okay, जाता है. okay, sir. No, I was just questioning. Level Okay, कर लो. okay. I agree. होना चाहिए. और this curiosity should be there, and कुछ भी है तो पूछ लो. But this is Mm-hmm. entirely one different system at all. तो हम 3 साल से नहीं सिखा रहे, because this needs no lot of thought process. This is not frame Mm-hmm. in single line, Yeah, single click. okay. And in thought process, no, there are chances of mistakes हो रही है.
तो हमने उसको निकाल ही दिया, सिखाना ही बंद कर दिया। Okay. ठीक है, Okay, sir. I have done. My questions are done. ओके ओके। हाँ राजीव कहिए। Sir, though it's out of the contest question, can you analyze Marico for me? Marico Industries? क्यों ऐसा करना है? Sir, I'm मैं कर already लेता हूँ आज holding आपके this रिस्पेक्ट के position. लिए। देखो मैं आपके लिए मैं आज के रिस्पेक्ट के कर लेता हूँ, लेकिन वो दुकानदारी अलग रखो, ये दुकानदारी अलग रखो। सॉरी, तीन I महीने के लिए कह understand रहा sir, हूँ। बस कल एक्चुअली अब सिर्फ मैं कल last मेरी को है ना, यहाँ पे ये स्नेक आया 21 दिसंबर को, ओके तब से ये सेलिंग में है। और इसके पहले जो लेडर थी तो उसने 420 का हाई बनाया, तो स्नेक आने के बाद में उसने मैसेज दे दिया कि अब 420 हायर साइड ट्रेड करना, बीडीपी के साथ ट्रेड करना, फिर एक लेडर आना तो ये बढ़ेगा। तो 420 के ऊपर गया, पर डार्क ग्रीन कलर का लेडर नहीं आया। समझ रहे हो? हाँ जब जी तक ये सर, स्नेक में लेडर मैं आपको नहीं समझाऊंगा तब तक वो ठीक है। टिप देने जैसा हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, नहीं नहीं, स्नेक आया, बस सर थोड़ा सा ये आपका जो डेली एनालिसिस समझा है देता हूँ, कल समझा वीकली देता ओपन हूँ। हो चुका है। तो 21 दिसंबर को स्नेक आया, ठीक है। तो प्रीवियस लेडर में डार्क ग्रीन लेडर था। नहीं सर, मैं लैडर और स्नेक की नहीं, अभी मैं सिर्फ एक लेटेस्ट देख दीजिए कि लेकिन मुझे तो कुछ कहना होगा, तो मुझे कुछ रीजनिंग के साथ मैं बाई करने के ओके लिए कह रहा हूँ, सेल करने के लिए कह रहा ओके हूँ, तो आई नीड टू जी जी गिव यू सम रीजन। नो, नहीं तो ओके सर, आपने क्या कहा एनालिसिस करके बताओ, तो मैं एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से कह रहा हूँ 21 दिसंबर स्नेक हैज कम। ठीक है, इसके पहले डार्क ग्रीन लेडर है ओके एंड इट इज रजिस्टर्ड हाई ऑफ 420.80। जी अब ये स्नेक से चल रहा है, और यहाँ पे लाइट ग्रीन लेडर है पकड़ ओके 420.80 हायर से ट्रेड करके डार्क ग्रीन लेडर शुड अकर। ये 420 के ऊपर तो गया 4 दिन, जी बट डार्क ग्रीन लेडर नहीं आया। जी और स्नेक आ गया, जी मतलब दिस सजेस्ट क्लियर कट सेल है ये। ओके वापस देखो 420-25 ही आ रहा है। यहाँ पे बाजार डार्क ग्रीन लेडर में कौन सा हाई बनाया था? 420। जी फिर बढ़ के कितना बनाया? 425, 432। ये स्नेक आने के बाद में भी इट इज कमिंग 426, 422, 422, 418, 422, 425, 425। ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ही है। ओके एंड न्यू राउंड ऑफ सेलिंग आएगी जब आ गई। न्यू राउंड ऑफ सेलिंग है, इसमें सेलिंग ही है। और कल ये जो ओके जहाँ से 405 रुपया 10 पैसा है, इसके नीचे गया तो और टूटेगा। फिर डार्क ग्रीन ओके में एक 5 रुपए का ट्रेड है जो आपको देना है। अब धीरे धीरे तैयार हो जाओ तो फिर सीधा 405 तोड़ा, तो जर्नी विल बी, एक भी लेटर बीच में नहीं आना, तो जर्नी विल बी 362। ओके बट ये स्नेक्स एंड लेडर्स में आपको सिखा दूं, पहले इतना आप क्लियर करोगे तो आएगा। तो आपके थ्रू ठीक है मैं सर, थैंक यू। आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब, हमारे सबके कुछ ना कुछ मार्केट में हम है, तो कोई ना कोई पोजीशन रहेगी, लेकिन जी वो एक दुकानदारी अलग रखिए, शिक्षा की दुकानदारी ठीक है अलग सर, रखिए। थैंक यू। ठीक है ना? फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, बाद में तो कुछ भी करेंगे हम। ठीक है ठीक है सर, ना? थैंक यू। बहुत सिंपल है, 425 के नीचे है, 160 की जर्नी है, 405 तोड़ती एक लाइन में है। बट वो एक लाइन सीखने के लिए काफी कुछ सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। हाँ रॉय बोलो। Sir, hello, sir. Good afternoon, sir.
वेरी गुड आफ्टरनून। सर आपने जो नोट्स भेजा था हम लोगों को संडे के क्लास के बाद, वहां पे एक तो पीडीएफ नोट में सीटीएफ और एलटीएफ है, वो क्या करेंट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम समझा रहा है? बस बराबर है। CTF मीन्स करंट टाइम फ्रेम, LTF मीन्स लोअर टाइम फ्रेम। ओके सर, जस्ट यही क्वेरी था मेरा। थैंक यू सर। अब इस आपकी क्वेरी हो गई हो तो इस वीक में बाजार को कैसे ट्रेडिंग किया जाए उसके ऊपर हम आते हैं। एक्चुअली बाजार अब तक बाइंग में था और 18 तारीख से धीरे 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 सेलिंग के मोड में जा रहा है। बहुत स्लोली कैसे जा रहा है ये हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे। अब धीरे धीरे उस सेलिंग में जा रहा है और इसके हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है, बट फिर भी हम पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में जाते हैं और जितनी भी स्क्रिप्ट अवेलेबल है उसको आपको ट्रेड करना है और कम से कम ट्रेड नहीं हो तो वॉच तो करना ही है। पर मैं तो चाहता हूँ कि ट्रेडिंग कीजिएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम में गए, यहाँ पे समझ में आ गया। नाउ वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस। काउंट में गए, बाइंग इन ट्रेंडिंग के 8 स्क्रिप्ट है उसमें गए और फिर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में गए। पर आपको अभी सिर्फ रिट्रेसमेंट में कैसे बाइंग करना यही समझाया गया है, बाकी सब नहीं समझाया है। तो हम करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट में गए तो देयर आर 2 स्क्रिप्ट्स जो बाइंग में भी है और रिट्रेसमेंट से चल रही है। तो गोदरेज सीपी जो है मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 25 जनवरी को 12:30 बजे ये रिट्रेस हुआ है। अब 25 जनवरी के बाद ये जब भी लो टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट या फ्रेश सपोर्ट से चले तो हम बाइंग करेंगे। बट वो FR AR जो कहते हैं वो तब होगा जब अपर बैंड ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट से चले। और इसमें एक बात और है कि ये चलेगा तो यहाँ पे 25 जनवरी को ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप एंड यूज टू सेल। तो ये 25 जनवरी को स्टॉप एंड यूज टू सेल 811 के नीचे हुआ था। तो इसकी मैक्सिमम जर्नी होगी, अगर बाइंग आ भी गई तो मैक्सिमम जर्नी 811 होगी और वहां पे हमको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी और फिर 811 हायर से ट्रेड करे तो नया बढ़ेगा। सो वी आर हैविंग इन बाइंग 2 अपॉर्चुनिटीज। गोदरेज सीपी 25 जनवरी 12:30 के बाद रिट्रेस हुआ है और अब आने वाले दिनों में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेली में सपोर्ट मिले तो बाइंग करेंगे और जो भी वीकली का 23.6 है वहां पे स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। सेकंड अपॉर्चुनिटी ये गोदरेज सीपी से भी बेटर विप्रो है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ नहीं है। ये लेस देन BDP लिखा है, मतलब स्टॉप एंड यूज टू सेल है। ये एंड का साइन है, मतलब स्टॉप एंड यूज टू सेल है। यहाँ पे एंड का कोई साइन नहीं है, एम्परसेंट कोई साइन नहीं है। ICFC विप्रो, ICFC ओपन होकर एक्टिव सपोर्ट मिलके 25 जनवरी 3:30 बजे सपोर्ट से चला है। अब 1, 2, 3 दिन में जब भी लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम कहेंगे FR AR। इसमें और स्क्रिप्ट ऐड हो सकती है, बस कुछ भी नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग करना है और RC 23.6 पे स्क्वायर ऑफ करना है, क्योंकि दोनों ICFC का ट्रेड है तो उसकी जर्नी फर्स्ट जर्नी RC 23.6 होगी। फिर RC 23.6 तक आकर फिर वो जो हम कहते हैं कि RC में वापस एक बार रिट्रेस होना, फिर वापस लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो हम फिर बाइंग करेंगे फॉर द जर्नी ऑफ RC 100%। मैं लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में से बाहर निकलता हूँ, काउंट में जाते हैं और सेलिंग इन ट्रेंडिंग में 6 स्क्रिप्ट है और ये हम इसका लॉजिक देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट आई कैसे, उसके पीछे रीजन टू बाई, रीजन टू सेल यहाँ पे लर्न मोर में मिल जाएगा आपको जब इसे ट्रेड सेटअप पर जाएंगे तब। ये 6 स्क्रिप्ट है। यस, फिर लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में गए तो 3 है। अब करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट से एक भी नहीं है, एक भी इसकी रिट्रेस नहीं हुई है। आर में से लोअर ओपन हुआ है
तो ट्यूसडे को रिट्रेस होगा कल, तो लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले बेच दो। ये आईसीआरसी में है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलके बाद में रिट्रेस हो, कि लोअर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट मिले तो बेच दो। नेस्ले और कोटक बैंक बेस्ट है, तो कल ये रिट्रेसमेंट का वेट करना है और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलने को बेचना है। और जब रिट्रेसमेंट होगा इसमें, या तो रिट्रेसमेंट आप समझ लो, या तो रिट्रेस होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट। जो भी स्क्रिप्ट रिट्रेस हुई है दैट विल बी फिल्टर्ड आउट, बट अभी एक भी रिट्रेसमेंट से इसमें चल नहीं रही है। तो इस तरह से इस वीक में FRAR का सौदा लीजिएगा, बाइंग में एज वेल एज सेलिंग में। 2 मिनट का ब्रेक दीजिए मुझे, 2 मिनट। ठीक है ना? Any query in this? फिर से समझाता हूँ। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में गए, फ्यूचर स्टॉक, वीकली, Opportunity buying, चार स्क्रिप्ट, ये चारों चार स्क्रिप्ट ट्रेडेबल है, चारों चार स्क्रिप्ट बेस्ट बाई है। बट हम अभी एक ही तरीका सीखे हैं सो फार कि करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो तो 2 स्क्रिप्ट आई। अब ये 2 स्क्रिप्ट करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके चल रही है, बस अब एक ही कंडीशन है, एक ही वन लाइनर वन क्लिक। इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम डेली में सपोर्ट मिलने पर बाइंग करना है। पूरे गोदरेज सीपी में और विप्रो में, विप्रो और बेटर है। क्यों? क्योंकि गोदरेज सीपी जो है वो गोदरेज सीपी में लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, मतलब प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग। फिर भी नो प्रॉब्लम, वो रेजिस्टेंस 811 का है, तब तक तो हमारा RC 2316 का जो भी टारगेट है वो आ जाएगा। गोदरेज सीपी ICICI खुल के एक्टिव सपोर्ट मिलके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है। कंडीशन 1, ये सपोर्ट लोअर साइड नहीं ट्रेड करना। कंडीशन 2, लोअर टाइम फ्रेम में डेली में सपोर्ट मिलना। और विप्रो ये ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें ICICI खुल के एक्टिव सपोर्ट होके यहाँ पे FC 38.2 के पास मिल रहा है, सो ट्रेडेबल डिस्टेंस भी काफी अच्छा है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है और वहीं खड़ा है। बस एक लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल जाएगा तो हम कहेंगे FRAR एंड फर्स्ट जर्नी RC 23.6%। RC 23.6 पे पोजीशंस क्लोज करने के बाद तो RC 38.2 तक आकर फिर RC 14.6 तक आके फिर एक और बार रिट्रेस करेगा। फिर वो रिट्रेसमेंट के बाद इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो फिर से बाइंग करना है, जर्नी RC 100%। रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड किया तो जर्नी RC 100%। उसी तरह से हम सेलिंग में जाते हैं, काउंट में गए, सेलिंग एंड ट्रेंडिंग में 6 स्क्रिप्ट है, लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में गए तो 3 है, तो तीनों ट्रेडेबल है। और वो तीनों ट्रेडेबल में मैंने सिखाया अभी आपको एक ही है,
करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो और लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो सेल करना है। बट यहाँ पे एक भी स्क्रिप्ट ऐसी नहीं है जो करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट से चल रही है। इसमें जो भी रिट्रेस होगी उसके लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो सेल करना है। एनी क्वेरी करोगे ना तो समझ में आएगा। अब यही ट्रेड्स हम वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लेते रहेंगे इवनिंग वेबिनार्स में। थर्सडे भी अपना एक स्पेशल वेबिनार सिर्फ आपके लिए होगा। ये ट्रेड खाली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन लोगों को ट्रेडिंग करना ही है। बट बेस्ट वे ये है कि सेशन 3 में जो हमने सीखा सब सपोर्ट रेजिस्टेंस के सिनेरियोस बहुत अच्छे से सीख लो, रिट्रेसमेंट अच्छे से सीख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग्स लिखना सीख लो। 1 महीना लगेगा उसमें, कर लो। और साथ साथ में पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जो भी स्क्रिप्ट रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है बाई करो, जो भी स्क्रिप्ट रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है सेल करो। क्योंकि हमारी सिस्टम में बजट 18 को ही डिस्काउंट हो गया जब स्क्रिप्ट जो है जो स्नेक्स एंड ट्रेडर्स मैंने आपको बताया 18 तक सिर्फ 5 स्क्रिप्ट थी, तो 18 को शाम को 27 स्क्रिप्ट हो गई। नाउ करंटली 99 scripts are trading with snakes. 99 scripts out of 144. Because we can say the market is not, budget is not likely to be favorable to the market. तो 18 जनवरी से ये हमको मालूम है कि बजट फेवरेबल नहीं होगा। कोई क्वेरी? देखो आप हमारा एक एग्रीमेंट है, आपको याद दिला दूं, कहीं भी आपको नहीं समझ में आता है तो आपको ये समझना है कि सर को समझाना नहीं आता है, मैं तो होशियार ही हूँ। उसकी किसी भी क्वेरी छोटी भी हो सीधी भी हो तो पूछने से प्लीज डू नॉट हेजिटेट। और मैं भी समझता हूँ कि अब क्वेरीज जो है बहुत कम हो रही है। ओनली रीजन इज सब कुछ सामने। अब ट्रेड में क्या क्वेरी पूछोगे, सामने ही जवाब है। थियरी में क्या क्वेरी पूछोगे, सामने ही जवाब है। गैप में क्या क्वेरी पूछोगे, सामने ही जवाब है। एटीआर में क्या क्वेरी पूछोगे, सामने केस स्टडी भी है, आंसर भी है। आप मानोगे ये रीबिगिन टू बाई और री एंटर इनटू आरसी कुछ लोगों को समझाने में 2-3 महीना लगता था, बिकॉज देयर वर नो केस स्टडीज। क्वेरी नहीं आती है रीबिगिन टू बाई री एंटर इनटू आरसी में, क्योंकि तो कंडीशंस नोट करके दे दी, सामने रीबिगिन टू बाई री एंटर इनटू आरसी की केस स्टडी आ गई, तो क्वेरी हो भी नहीं सकती है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट फिर भी मैं भी इतना टाइम निकाल रहा हूँ, आप भी अलग से इतना टाइम निकाल रहे हो। इट इज नॉट वे टू लिसन मी, it is only to raise the queries if any, right? कुछ लोग व्हाट्सएप में क्वेरी पूछते हैं, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ व्हाट्सएप में मत पूछिए। उसके 2 रीजन है कि एक तो मुझे व्हाट्सएप में चैटिंग वेटिंग है ना, सब बड़ा बोरिंग लगता है, मुझे आता भी नहीं है, आई एम वेरी स्लो एट इट। और दूसरा क्लैरिटी नहीं हो और मैं आपको कुछ भी जवाब दे दूं और आप समझो कुछ, मैं लिखूं कुछ, देन इट इज एन इशू। दूसरा एक और इशू भी हो सकता है कि व्हाट्सएप आपने मैसेज भेज दिया, शायद मैं कहीं और काम में बिजी हूँ, मैंने देखा न देखा और छोड़ दिया है, मैं गो ऑन आंसर। बेस्ट यही है कि हम वेबिनार में मिलते हैं तो हाथों हाथ केस स्टडी के साथ में आई एम फोकस्ड, नाउ आई एम विथ यू मीन्स आई एम विथ यू। एक मेरी बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स है मुझे कि मैं जिसके साथ हूँ उसका हो जाता हूँ और उसी के पास रहता हूँ, तो उसको एहसास भी नहीं होता है कि मैं कुछ और सोच भी रहा हूँ। कुछ और करने की बात तो छोड़ो, कुछ और सोच रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ या किसी और के साथ लगा हुआ हूँ, वैसा नहीं है।
तो जब मैं वेबिनार में हूँ तब आप ही के साथ 100%। तो कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अनदर 2-3 मिनट्स। हाँ रॉय गुरु। सर ये सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का रिपोर्ट निकाला वो वीकली का निकाला, जो एक्टिव सपोर्ट एक्टिव रेजिस्टेंस का रिपोर्ट वो कैसे निकालते फिर से बता देंगे, क्योंकि मेरे से ठीक से वो नहीं आ रहा है सर। सपोर्ट रेशियो समरी में गए। ओके सर। सपोर्ट रेशियो समरी है यहाँ पे फ्यूचर हाँ स्टॉक्स सपोर्ट किया। रेजिस्टेंस ओके वीकली। फिर अब यहाँ पे वीकली में आज नहीं मिलेंगे आपको फिर सपोर्ट, क्योंकि सब पोस्ट ओपनिंग पीरियड में होगा। तो पोस्ट ओपनिंग पीरियड आज से शुरू होता है, तो आज हॉलीडे है तो कल से शुरू होगा। तो लेट अस गो टू मंथ। ओके ओके सर। ओके मंथली में ये मैंने वीकली में चेक किया था तो 0 आ रहा था, क्योंकि बाजार कल ही तो आईसीआईसी ओपन हुआ है ना। हाँ मैक्सिमम आपको वीकली में एक्टिव सपोर्ट सकता है, क्योंकि री एंट्री री बिगिन अपर बैंड ट्रेड्स स्टॉप एंड टू बाय सेल एक्टिव सपोर्ट के अलावा आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट और आईसीआरसी एक्टिव रेजिस्टेंस के अलावा अदर देन दैट से वो कब होंगे? वो पीरियड में ना। सर सर आपका आवाज ड्रॉप हो रहा है सर, समथिंग इज नेटवर्क इज नॉट वेल सर। आईसीआरसी हेलो एक्टिव रेजिस्टेंस, आईसीआरसी एक्टिव रेजिस्टेंस, यस सर। आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट, यस सर। ये दो ही ओपनिंग पीरियड में होगा। यस सर। री एंट्री इनटू आरसी, री बिगिन टू बाय, अपर बैंड ट्रेड्स, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल, ये सब कब होगा? सर कुछ देर बाद पोस्ट ओपनिंग पीरियड में होगा। पोस्ट ओपनिंग पीरियड में होगा सर। और पोस्ट ओपनिंग पीरियड कब से शुरू हो रहा है वीकली में? ट्यूसडे वीकली में मंडे के बाद दिन, जो पहला दिन के बाद दिन। हाँ तो मंडे के बाद आज आज तो हॉलीडे है। आज छुट्टी था, आज हॉलीडे है तो कल से शुरू होगा सर। कल से सब रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको। ओके सर। क्योंकि इट ओके डज सर। ऑल दिस occurrences does not occur in an opening period. ओके सर। और बाकी सीखना हो मंथली में तो सब मिल जाएंगे। प्रेस सपोर्ट करो अपर बैंड ओके सर। ट्रेड्स तो सब स्क्रिप्ट्स आ जाएगी। ठीक है। हाँ सर चलो जरा थैंक यू सर। देखो ट्रेड करके चल रही है अपर बैंड ट्रेड करके, और देखो स्टॉप एंड यूज टू सेल कितनी हुई है, सपोर्ट कितनी स्ट्रिप में तोड़ दिया है 112 में से। ये भी अभी देख रहा हूँ आपके साथ। फ्यूचर स्टॉक्स monthly proportion summary, stop and use to sell.
55 स्क्रिप्ट है ना, स्टॉक इन्वेस्टर सेल हो गई, और अभी तो मतलब 55 स्क्रिप्ट प्राइसेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग। तो दिस आल्सो सजेस्ट स्मॉल अपने पास बहुत सारे टूल है जो मार्केट की ब्रेथ अपने को बताता रहेगा, राइट। और स्टॉक इन्वेस्टर सेल की केस स्टडी करने हैं मंथली में, तो हमारे पास 55 है, वीकली में कल से मिलेगा। आर यू क्लियर रॉय? Yes, sir. Clear. Shall I leave the webinar? Love you all. Thank you. Thursday मिलेंगे।